Hello student, welcome to the SST class. I hope you all are going good and I am also good. I am Bharati Dixit, your teacher, and I am presenting you a very new chapter. Let me know you the name of the chapter. And it's Our Incredible India. And we start this chapter with an activity to help student understand India's location, neighboring countries, physical and political features and the spirit of unity in diversity. तो हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में. Material needed: India's map, political plus physical, flashcard, countries, landform, monuments, bell timer and scoreboard, and how to play. Then how to play: round 1, border hunt, neighbors games, teachers call out a neighboring country, that is example Nepal. A student runs to the map and point to the correct location and where that country shares its border with India's correct answer 1 point. Round 2, landform challenge, teachers show a flashcard, example Himalayas. Then student must point to the correct region on the map and name one fact, example Himalayas are the highest mountain, correct 2 points. Then round 3, unity in diversity match. Then teacher places flashcard of monuments heritage on one side and states region on the other. Students match, example Taj Mahal Uttar Pradesh, Golden Temple Punjab, correct match 2 point. Round 4, quick quiz. Teacher asks rapid fire question, capital of India, who is known as the father of the Indian Constitution, how many states does India have? Then we have some learning outcomes. Student will identify India's neighboring countries' physical features and cultural heritage while understanding the idea of unity in diversity, and they will also develop map skill, teamwork and quick recall through interactive play. India's place in the world. India lies in South Asia, a region of great cultural and geographical importance. It is the 7th largest country in the world by area and most populous country, with over 1.41 billion people. From the towering Himalayas in the north to be deep as the seas in the south, India location gives it a unique identity. तो इंडिया जो है वो साउथ एशिया में लाई करता है, एशिया कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे बहुत सारे कल्चरल और जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है यहाँ की. जोग्राफिकली हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है, कल्चरली हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है, ठीक है. और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की. यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं, ओवर द 1.41 बिलियन people lies in India and lives in India. And from the towering Himalaya, नॉर्थ में इसके हिमालय है और साउथ में इसके ओशन है, दैट इज़ द इंडियन ओशन, और वी कैन से द सदर्न ओशन ऑफ इंडिया. Then we have unity in diversity. India is a land where people follow many religions: Hindu, Islam, Sikhism, Buddhism and Christianity and Jainism. They speak different language, wear very traditional clothes and celebrate festival in their own ways. Yet beneath all this diversity lies a common थ्रेड ऑफ यूनिटी. तो हमारे देश में बहुत सारी यूनिटी पाई जाती हैं, बहुत सारे धर्म यहाँ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जैन, बौद्ध, बहुत सारे धर्म यहाँ पाए जाते हैं. उनमें भी अलग अलग कास्ट यहाँ पर मिलती है. कास्ट सिस्टम बहुत वाइडली स्प्रेड है इंडिया में, ठीक है. और यहाँ पे हर स्टेट की अपनी अलग कॉस्ट्यूम्स हैं, अपने अलग कपड़े हैं, अपने अलग फोक डांसेस हैं, अपने अलग गीत हैं, जो कि इंडिया को अपना अलग खाना है, अपने पूजा करने के अलग तरीके हैं, हर धर्म को सेलिब्रेट करने के, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के यहाँ पे सबके अलग अलग तरीके हैं, जो कि इंडिया को डाइवर्स बनाता है. बट स्टिल बीइंग डाइवर्स वी आर इन यूनिटी, ठीक है, हम डाइवर्स होते हुए भी यूनिटी हैं. दिस स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एंड द रीजन इज वाई वर्ल्ड कॉल इट्स इनक्रेडिबल इंडिया. इसी डाइवर्सिटी के साथ होते हुए भी हम क्या है, यूनिटी में है, और इसीलिए हमें इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है. अतुल्य भारत, मतलब हमारे समान दूसरा कोई देश इस संसार में है ही नहीं. कंट्रीज सराउंडिंग इंडिया. इंडियाज शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द नंबर ऑफ कंट्रीज इन द नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट. पाकिस्तान लाइज इन द northwest, Nepal, China in the Bhutan in the north, Myanmar and Bangladesh to the east, and Sri Lanka in the south. So India shares its border with the most countries in the northwest, in the northwest and the east and in the south also. साउथ में श्रीलंका है और नॉर्थ में हमारे म्यांमार और बांग्लादेश हैं, जिसमें कि आप देखेंगे हमारे नॉर्थ वेस्ट में है नेपाल, चाइना, भूटान, और हमारे नॉर्थ वेस्ट में है हमारे पाकिस्तान. तो इस तरह से हम अपनी कंट्री, हमारी बॉर्डर है वो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं, बिकॉज वी आर वाइडली स्प्रेड.
Political features of India. We know that India is a big country with a large population. In order to run our country efficiently and take good care of its people, our country is divided into states and union territories. There are 28 states and 8 union territory in India. तो हम जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है और यहाँ पे इसलिए इसको अलग अलग सब स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। और हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं ओवर द ऑल ओवर इंडिया। देन एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट वेयर एज अ यूनियन टेरिटरी इज रूल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज राजस्थान वाइल द स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा। तो हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है जो कि वहाँ के रूल्स बनाती है, लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो वहाँ के लोग होते हैं वही अपने रिप्रेजेंटेटिव को यानी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं जो उनके बिहाफ पे उनके लिए अच्छे फैसले लेते हैं। हमारा जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, वाइडली स्प्रेड हमारा जो स्टेट है वो है राजस्थान और सबसे छोटा स्टेट है हमारा गोवा। New Delhi is the capital of our country. The offices of the Government of India are based in New Delhi. The President, Prime Minister and Union Minister and other important officials live and work here. तो न्यू दिल्ली हमारे जो कंट्री है उसकी कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिसेज यहीं पे ही मिलेंगे आपको। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर सभी के ऑफिशियल रहना और खाना मतलब काम यहीं पर ही होता है न्यू दिल्ली में। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ वेरिड लैंडफॉर्म। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, वास्ट प्लेन, एक्सटेंसिव प्लेट्यू, अ लार्ज डेजर्ट, लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड ब्यूटीफुल हिल्स एंड फॉरेस्ट। द लैंड फॉर्म्स आर। तो हमारे पास बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं जिसमें कि हमारे हाई माउंटेन्स आते हैं, वास्ट प्लेन्स आते हैं, एक्सटेंसिव हमारे प्लेट्यूज आते हैं, डेजर्ट भी है हमारे पास, ठीक है, कोस्ट लाइन भी हमारी सबसे बड़ी है एंड ब्यूटीफुल हिल्स यहाँ पे आती हैं। द features are the northern mountains, the northern plains, the great desert, the great Indian plateau and the coastal plain, the islands। तो ये हमारे फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के। इंडिया में अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह का लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा। India is a peninsula because it is surrounded by water on 3 sides. It has the Indian Ocean in the south and Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east। तो पेनिनसुलर रीजन भी है हमारे इंडिया में, जो डेक्कन प्लेटू है वो पूरा पेनिनसुलर रीजन भी उसको बोलते हैं क्योंकि ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, जिसके ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी और साउथ में है इंडियन ओशन। आर कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल्स एंड लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न फॉर्म its constitution। Having a constitution is the way of making sure that those who govern the country do not act according to their own will। Any decision they take must follow the constitution। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लॉज लिखे गए हैं, कुछ ऐसे हर चीज़ को कंट्रोल करने के, इवन गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने के लॉज लिखे गए हैं और वहाँ पे हर तरह का हमारे फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। सब कुछ उसमें दिया हुआ है कि कोई भी अपनी मनमानी यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, लोकतंत्र चलता है, लोगों की मर्जी से सरकार चुनी जाती है। लोगों को पूरा अधिकार है सरकार के खिलाफ बोलने का, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का। सरकार अगर कुछ गलत करे तो लोग उनका विरोध भी करते हैं, आपने देखा हुआ सड़कों पर धरना प्रदर्शन भी हो जाते हैं, ठीक है। और पूरी आज़ादी है हमारे भारत में क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक country. Then we have, just before we gained independence, a body called Constitution Assembly was elected and was given a task of discussing and deciding upon our constitution. The Constituent Assembly then formed a committee to prepare the constitution. The committee was headed by Dr. भीम राव अम्बेडकर. तो जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी. उनको ये काम सौंपा गया था कि वो देश के लोगों के लिए, सबके लिए एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स तैयार करेंगे जिससे कि कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा, सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा. एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कमिटी थी उसके जो मेंबर थे वो थे भीम राव, उनके जो हेड थे वो थे भीम राव अम्बेडकर. It became our constitution on 26 January 1950. We say that we adopted our constitution on this day, which is celebrated as our Republic Day every year. और हमारा संविधान टोटल बनने में 2 से 2.5 साल का समय लगा था, जो कि 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था. हमने उसको इन फोर्स लेके आए थे और तब से हम इस दिन को 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं.
Our government, the government of our country has three arms on parts. One arm make laws, it is the legislature. The second arm runs the country according to these laws. These arm is called executive, and the third arm makes sure that everything actually happens according to the law. This arm is called judiciary. तो हमारे गवर्नमेंट के तीन पार्ट होते हैं. एक होता है लेजिस्लेचर जो कि रूल्स को बनाते हैं, ठीक है, तो वो रूल बनाते हैं, लॉज बनाते हैं. सेकंड हमारा जो आर्म होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, जिनका काम होता है उसको रन करवाना, उसको लोगों के में इन्फोर्स में लेके आना. और जुडिशरी का काम होता है, थर्ड इसका आर्म होता है जुडिशरी, जो कि जनता के लिए न्याय का फैसला करती है. यदि किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ है, अकॉर्डिंग टू लॉ जुडिशरी उनका फैसला करती है, न्याय करती है. Then we have our parliament. The law making body for the whole country is the parliament. It has two houses or parts, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The president whose signature is needed for all laws is also a part of the legislature. फिर आता है हमारा पार्लियामेंट. पार्लियामेंट है एक लॉ मेकिंग बॉडी जो कि पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं. पार्लियामेंट में बैठ के जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम खुद चुनते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा दो पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है, दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के. उनमें ये राज्यसभा जो होती है वो स्टेट के लिए लॉज बनाती है और लोकसभा जो होती है वो पूरे देश के लिए लॉज बनाती है. और प्रेसिडेंट हु सिग्नेचर इज नीडेड फॉर ऑल लॉज, प्रेसिडेंट के साइन होने बहुत ज़रूरी हैं हर लॉ के ऊपर. और फिर इसको हम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. तो ये लेजिस्लेचर का पार्ट है कि हर रूल जो भी बनेगा उस पर प्रेसिडेंट के साइन ज़रूर होंगे. Then we have the Lok Sabha. The member of the Lok Sabha are elected by the people of the country during the general election. तो लोक सभा के जो मेंबर हैं उनको हम जनरल इलेक्शन से चुनते हैं और उनको देश के MPs के रूप में हम उनको बिठाते हैं लोकसभा में. Any Indian who is 18 or older than vote can in these election. The general election are held in every 5 ईयर्स, ठीक है. तो कोई भी जो 18 साल का है या उससे ज़्यादा उम्र का है वो इलेक्शन में वोट डाल सकता है और अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव को मोटिवेट उनको मतलब चुन सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में. Then we have the Rajya Sabha. The member of the Rajya Sabha are not elected directly by the people. They are elected by the legislative assemblies of the states and the union territories. In addition, 12 members are appointed by president. तो राज्य सभा के जो members होते हैं वो directly हम elect नहीं करते, not elected by the directly by the people. ये लोगों के द्वारा directly elected नहीं किए जाते हैं और इनको legislative assembly of the states and union territories इनको चुनती हैं और इनको representative बनाती हैं. इन एडिशन 12 मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इनमें से 12 मेंबर को अपॉइंट करते हैं. दे आर पीपल हु आर नोन फॉर देयर फील्ड वर्क सच एज आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड सोशल वर्क, ठीक है. तो ये टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, फील्ड वर्क में काम करते हैं. इनके फील्ड के वर्क के फील्ड क्या क्या होते हैं? आर्ट होता है, लिटरेचर होता है, स्पोर्ट्स होता है और सोशल वर्क होता है. द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर. तो राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं. 1/3 ऑफ देम रिटायर एवरी 2 ईयर एंड न्यू मेंबर आर इलेक्टेड. 1/3 को हर दूसरे साल में रिटायर कर दिया जाता है और फिर बाकी नए मेंबर्स को उसमें इलेक्ट किया जाता है. व्हाट डज द पार्लियामेंट डू? पार्लियामेंट क्या करते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक चेंजेस एंड रिमूव इनइफेक्टिव लॉज. तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है पार्लियामेंट का कि चेंज करना और इफेक्टिव लॉज जो होते हैं उनको हटाना, उनको चेंज करना. अपार्ट फ्रॉम दिस इट डिक्लेयर द टैक्सेस दैट पीपल मस्ट पे एन अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट विल स्पेंड इन अ ईयर and how it will be spent. It also discuss the problem of the people and the relation of our country with other countries. तो पार्लियामेंट का ये भी काम होता है कि टैक्सेस को लगाना, उनको कलेक्ट करना लोगों से, ठीक है, और फिर उसको कैसे पूरे साल बजट बना के उससे लोगों के हित में क्या क्या काम करने हैं, कहीं पार्क बनवाना है, कहीं ब्रिज बनवाना है, तो वो उसी पैसे से किया जाता है. ऑल्सो पार्लियामेंट का काम होता है कि अपने स्टेट्स के भी रिलेशंस अच्छे रखें और अदर कंट्री के साथ भी अपने रिलेशंस को कैसे हेल्दी रखना है ये भी पार्लियामेंट में डिस्कस होता है.
Then we have elections. For election, the country is divided into many areas called constituencies. The people of each constituencies are free to vote for any of the candidates from their area. तो फिर होते हैं इलेक्शन, तो हर एक जो एरिया होता है उसको कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, राजनीतिक भाषा में कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं उसको, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने ही लोग पार्टी के अकॉर्डिंग, जितनी पार्टी हैं वहाँ से टिकट लेकर के और उसमें इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं अपने एरिया से। Any Indian who is 25 years old or above can be candidate, and usually those who contest election belong to a political party. तो कोई भी इंडियन जो 25 साल से ऊपर है, 25 साल का है, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है एज अ कैंडिडेट ऑफ for being the next MP or MLA. The candidate who gets the highest number of votes is elected. जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। इंडियन फार्मर्स, फार्मिंग इज़ अ प्रोफेशन फुल ऑफ होप इन इंडिया। तो हमारे जो सबसे पुराना हमारा काम है इंडियंस का वो है फार्मिंग, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग वी आर डिपेंड ऑन फार्म प्रोड्यूस। इंडियन फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर कंट्री पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फार्मर्स फॉर देयर लिवलीहुड। तो आज भी 70% हमारी जो जनता है वो अपने लिवलीहुड के लिए किस पे, किसानी के पे, यानी कि जो खेती बाड़ी होती है उस पर डिपेंड करती है। और ये जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं ये हमारे इंडिया के बैकबोन्स है, ठीक है, क्योंकि एंशिएंट टाइम से सबसे ज़्यादा हमारे देश में फार्मिंग ही होती थी। फार्मिंग एड्स आर कंट्री ट्रेड्स ऑल्सो। Products like tea, sugar, rice, tobacco, spices, etc. are the main exports of India. Due to the India's geographical location, some parts experience different climate. This affect the agriculture produce of each region differently. तो हमारे देश जो है फार्मिंग से हम एड्स भी करते हैं, यानी हम पैसा भी कमाते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, जैसे चाय हुए, चीनी हुई, चावल, टोबैको, स्पाइसेस, ये सब हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इंडिया से बाहर, जिससे कि हमें अच्छी खासी इनकम भी होती है। जोग्राफिकल लोकेशन हमारे इंडिया की बहुत अच्छी है, जिससे कि हमारे यहाँ पे ऐसा क्लाइमेट होता है कि हम ये सब चीज़ें तैयार कर पाते हैं, लाइक चाय पत्ती वगैरह है ना, टी, ये सब हमारे बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट इनको चाहिए होता है। Then we have types of farming in India. First we have commercial farming. In this type of farming, crops are grown on a large scale in plantation, and they are grown for the purpose of being in markets or shipped to other countries in exchange for money. Rubber, tea, tobacco, spices, coconut, etc. are some commercial crops. तो commercial farming में होता है कि आप commercially आप बेचने के लिए कुछ चीज़ फार्मिंग कर रहे हो और उसको बेचने के पर्पज़ से कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है काफ़ी लार्ज स्केल पे इंडिया में होता है, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या करते हैं, शिपिंग हम क्या क्या करते हैं, देखो रबर करते हैं, टी करते हैं, तंबाकू टोबैको करते हैं, स्पाइसेस, कोकोनट, ये सब हम कमर्शियली ग्रोन अप करते हैं, फार्मिंग करते हैं और फिर इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पज़। देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग, द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस फार्मिंग। Farmers cultivate small scattered pieces of land with the help of their family members and farm animals. तो ये होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स, ज़्यादातर इंडियन फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, जिसमें कि वो एक अपने जो लैंड है, अपना जो उनकी जगह है उसमें स्मॉल उसके स्कैटर्ड बना लेते हैं, पट्टे से बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें अलग अलग फार्मिंग करते हैं। द टूल्स यूज्ड आर सिंपल एंड टेक्निक्स are basic. Main emphasis is on food crops. Farmers focus on the growing enough food for themselves and their family. तो उसने में वो उतना ही ग्रोन अप करते हैं कि उनके और उनके फैमिली के लिए कारगर हो जाए, उनकी फैमिली के लिए काम चल जाए, तो इतना ही वो ग्रोन कर पाते हैं। Then we have mixed farming. Mixed farming is a type of agriculture that involves farming as well as raising livestock at the same time. तो मिक्स फार्मिंग होती है जहाँ पे लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं और लाइफ स्टॉक भी, मतलब चरावाहे भी बने हुए हैं, वो अब पालन भी कर रहे हैं ना, वो क्या कैटल को पालन भी कर रहे हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेस्ट्री, फ्रूट कल्टीवेशन, डेयरी, पोल्ट्री, मशरूम की बी कीपिंग एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो यानी खेती भी कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन भी चल रहा है, ठीक है, और उन्होंने मशरूम भी पाल रखी है, पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रखी है, फ्रूट भी कल्टीवेशन किया हुआ, तो मतलब उसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं।
Then we have shifting farming, agriculture. In this type of farming, a piece of land in the forest is cleared by burning the trees. The ashes help increase the fertility of the soil. This kind of farming is practiced by the tribal communities. After 2 to 3 years of cultivation of land, the fertility of the soil again decrease and farmers shift to some other places. तो ये होता है शिफ्टिंग फार्मिंग, जिसमें होता है कि एक जगह के पेड़, फॉरेस्ट में ज़्यादातर होते हैं, एक जगह के पेड़ पूरे जला दिए, तो जलाने से जो राख हुई, उस राख जो होती है वो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देती है, ठीक है। फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ सालों तक वहाँ पे फार्मिंग की, ठीक है। फिर उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर सेम प्रोसेस वहाँ पे किया कि आग लगा दी, जला दिया, फिर वहाँ पे फार्मिंग की। तो उससे क्या होता है कि थोड़े सालों बाद मिट्टी वापस से उतनी फर्टाइल हो जाती है, और फिर वो इस तरह से, इसको हिंदी में झूम फार्मिंग बोलते हैं, इंग्लिश में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं हम। ड्राई पैडी, वीट्स, मेज, टोबैको एंड शुगर केन आर ग्रोन बाय दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। दिस मेथड इज नॉट एडवाइजेबल एज इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो इसमें ड्राई पैडी, गेहूँ, मेज़, टोबैको, ये सब उगाया जाता है, लेकिन इसको नॉट एडवाइज किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देता है। तो ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ज़्यादातर जंगलों में होते हैं। तो जंगलों में पेड़ काटेंगे, फिर उसको सफाई करेंगे वहाँ से, है ना, जला देंगे, तो इससे डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा होता है, तो इसलिए ये नॉट एडवाइजेबल होती है। Then we have organic farming. Organic farming refers to eliminating artificial and synthetic inputs used for farming and encouraging eco-friendly management of farms. Australia is the global leader in organic farming. Organic inputs like farm yielded manure, compost, biofertilizer, biopesticides, etc. are used to grow crops. The farm produce from this farming is not a superior quality and has more nutritious value, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि जिसमें हम जो यूरिया खाद होती है और जो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं वो हम फार्मिंग में यूज़ नहीं करते हैं, हम ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं, ऑर्गेनिक हम उसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द ग्लोबल लीडर, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, ग्लोबल लीडर है ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ में, ठीक है। वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं क्या, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि ईजिली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मिट्टी को उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता और उल्टा मिट्टी फर्टाइल्स हो जाती है। The farm produce from this farming is a superior quality and has more nutritious value। और ऐसी जो फार्मिंग होती है, इससे जो प्रोडक्शन हमारी निकलती है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। This produce is costlier than farm produce. The growing health consciousness among people has led the organic farming to gain greater momentum, ठीक है। तो ये जो होती है, ये जो नॉर्मल जो फार्मिंग हम करते हैं, फार्म प्रोड्यूस करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, और हमारी हेल्थ के लिए, हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए बहुत अच्छी है। Then we have different state, different tastes. Each region in India different cuisines due to their geographical location and different climate condition. The crops grown in India, different region are also different. Wheat is the staple diet for the North Indians, whereas rice is an important part of the South Indian डाइट। तो हमारे पूरे इंडिया में क्या होता है कि हमारे स्टेपल फूड होते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो चीज़ होती है, प्रोडक्शन होती है, वही हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं। जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ पे रोटी ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन वहीं आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ पे चावल ज़्यादा खाया जाता है। हर चीज़ के साथ वो चावल ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वो वहाँ के स्टेपल फूड में आ गया, वो चावल वहाँ प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसलिए वो ज़्यादा ईटिंग हमारा फूड हो जाता है। ऐसे ही नॉर्थ इंडिया में रोटी ज़्यादा खाई जाती है क्योंकि गेहूँ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, ठीक है। Then food habits depends on a lot on our culture and tradition also. In the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan, people prefer to eat a calorie rich diet. तो हमारा जो खाना है ये हमारे कल्चर पर भी डिपेंड करता है, हमारे ट्रेडिशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया वाले जो स्टेट्स हैं, लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे ज़्यादातर रिच कार्बोहाइड्रेट, रिच कैलोरी डाइट यहाँ पे ली जाती है, जिसमें रोटी ज़्यादा होंगी, रोटी ज़्यादा खाएंगे, सब्जी खाएंगे, ठीक है। तो रिच कैलोरी डाइट यहाँ पर ली जाती
आती है। फ्राइड फूड एंड डेलिकेसीज मेड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट्स एंड आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन डाइट। और हमें फ्राइड फूड भी चाहिए होता है, हमें दूध घी भी चाहिए होता है, घी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इन स्टेट्स में, ठीक है, तो ये यहाँ के डाइट में शामिल होता है। डिशेज मेड फ्रॉम ऑफ राइस एंड पल्सेस आर मोर पॉपुलर इन द साउथ इंडियन स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर फेमस फॉर द मोमोज एंड द नूडल्स, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में मोमोज, नूडल्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है क्योंकि वहाँ पहाड़ है, पहाड़ों में फार्मिंग नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना फूड चूज़ किया और उसको खाना स्टार्ट किया। वहीं आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ पे चावल की डिशेज़ लाइक डोसा और इडली रवा, है ना, ये सब उन्होंने ज़्यादा बना लिया है और हर चीज़ के साथ, और सांभर के साथ भी चावल खा लेते हैं, तो वो उनका स्टेपल फूड में आ गया है। फिश एंड राइस आर कॉमन इन वेस्ट बंगाल, और चावल के साथ फ़िश खाना, क्योंकि वहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे फ़िशिंग ज़्यादा होती है और जो है फ़िश ईजिली वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ के लोग ज़्यादा फ़िश खाना पसंद करते हैं। The easy availability of ready-to-eat food has also changed our food habit due to paucity of time. Everyone wants to spend less time in cooking. This has led to overindulgence in fast food consumption, which is an unhealthy choice. It is essential that a balance of struck between healthy food and fast food. तो अब हम क्या हो गए, बहुत बिजी शेड्यूल में हो गए हैं, ठीक है, अब हमें खाना क्या चाहिए, फटाफट से जो बन जाए, तो हम ज़्यादातर पैक्ड फूड लेते हैं, ठीक है, इजी टू ईट, इजी टू मेक, इजी टू ईट खाना हम लेते हैं, उसको फटाफट बनाया, उबाला, जो भी किया, फ्राई किया और फटाफट से खा लिया। इससे हमारी फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। ओवर इंडल्जेंस इन फास्ट फूड, हम फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेल्दी अनहेल्दी चॉइस हमारी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि फास्ट फूड तो वैसे भी अनहेल्दी होता है, ठीक है, और हम स्ट्रक हो गए हेल्दी फूड और फास्ट फूड के बीच में, हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और हम वहाँ पे स्ट्रक हो गए। आवर हेरिटेज इज़ आर लिंक टू द पास्ट। द ग्रेट हेरिटेज ऑफ इंडिया reflect its rich culture and glorious past. It connect us to certain social values, belief, religions and customs. Heritage incorporates innumerable एसेट्स। तो हमारे जो हेरिटेज है वो हमारे पास्ट से हमें जो मिलता है वही हमारी हेरिटेज होता है। हमारे इंडिया में बहुत सारी ग्रेट हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ फुल ऑफ, ठीक है, रिच कल्चर है हमारा, रिच ट्रेडिशन है हमारा, ग्लोरियस हमारा पास्ट रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास्ट में हुई है, बहुत सारे इवेंट हमारे पास्ट में हुए हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं और आगे भी और पढ़ते रहेंगे। हमारे बहुत सारे वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स बहुत ही अलग अलग हैं, हर जगह पे हमारे बिलीव्स बदल जाते हैं, हर 100 किलोमीटर के बाद हमारा खाना पीना कपड़े सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और हमारा जो इंडिया है वो फुल ऑफ हेरिटेज है। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एक्सेट्रा। दीज स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अस विद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम दे वर बिल्ट इन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पेक्ट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड पास इट ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बस हमारे जो हेरिटेज हैं उनका हम ध्यान रखें, जो हमारे पैलेसेस हैं, हमारे फोर्ट्स हैं, क्योंकि हमें अपनी आने वाली जनरेशन को भी उनको पास ऑन करना है, तो उनका ध्यान रखें, उनको हम ख़राब ना करें और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको सिक्योर करके रखें। Some of these historical monuments have been declared as World Heritage Sites by UNESCO, an international organization that works to preserve these buildings. Heritage buildings are a great treat to the tourists who come and visit the country. तो कुछ हमारी ऐसी साइट्स भी हैं जो यूनेस्को ने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग कहा गया है, ठीक है, और जो टूरिस्ट आते हैं उनको देखते हैं तो हमारे देश की शोभा बढ़ती है उससे। यूटिलाइजिंग एंड रिवाइटलाइजिंग आवर हेरिटेज प्लेसेस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय जनरेटिंग इनकम थ्रू टूरिज्म। तो उनको बार बार यूटिलाइज करना टूरिज्म के लिए, तो इससे क्या होता है कि हमारी इनकम बढ़ती है, टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं हमारी वर्ल्ड हेरिटेज, अच्छा इंडिया में ऐसा भी है, तो उससे हमारी इनकम बढ़ती है, हमें काम मिलता है, लोगों को यहाँ काम मिलता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन इंडिया शोइंग द डिस्टिंक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू, इस्लामिक, यूरोपियन, पर्शियन एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं जो कि हिंदुइज्म को दर्शाते हैं, इस्लामिक को दर्शाते हैं, यूरोपियन स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं, पर्शियन, बुद्धिस्ट, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हमें हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। Taj Mahal. The Taj Mahal holds a place of pride in India and is recognized as one of
in the seven wonders of the world. This pinnacle of Mughal architecture was built by the Mughal Emperor Shah Jahan 1628 to 1658. तो ताजमहल आपको पता है शाहजहां ने बनवाया था, आगरा में है, ये हमारा सेवेंथ वंडर्स में से एक है, ठीक है। और ये शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए की याद में बनवाया था। Then we have Hawa Mahal. The Hawa Mahal Palace of the Wind stands upright at the entrance of Jaipur, an important landmark in the city. It is an epitome of the Rajputana architecture. The splendid five-story monument is a blend of beauty and splendor much closer to the Rajasthan culture. तो ये हवा महल जो कि जयपुर में है और ये 5 स्टोरी मल्टी बिल्डिंग है, ठीक है। और इसमें चारों तरफ से हवा आती, सारी खिड़कियों से हवा आती, बहुत ही सुंदर है ये। और ये राजस्थानी कल्चर को दर्शाता है। मुगल और पैलेस ऑफ विंड्स भी इसको बोलते हैं, हवा महल बोलते हैं, ठीक है। और राजपूताना कल्चर जो था ना, उन्होंने इसको बनवाया था। राजपूताना कल्चर को ये बहुत अच्छे से दर्शाता है। देन वी हैव सांची स्तूपा। द सांची स्तूपा इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। द मेजर अट्रैक्शन ऑफ द पैलेस आर बुद्धिस्ट स्तूपास, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल एंड पिलर्स। द मौर्यन एम्परर अशोका बिल्ड द स्तूपा एट सांची इन ऑनर ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो सांची स्तूपा ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये बुद्धिस्ट के जो मोनेस्ट्रीज होते हैं, जो उनके बुद्धिज्म को मानने वाले होते हैं, जो गुरु बन जाते हैं, है ना, तो उनको ये बहुत दर्शाता है। यहाँ पे पिलर है, टेम्पल है इनका। मौर्यन एम्परर अशोका ने इसको बनवाया था और इसको सांची स्तूप नाम दिया था लॉर्ड बुद्धा के ऑनर में। Then we have Sun Temple. The Sun Temple of Konark, also known as the Black Pagoda, was built in Puri in Odisha in the 13th century. It is built in the form of the chariot of the sun god with the 24 wheels, heavily decorated with the stone carving. तो ये उड़ीसा में है और इसको फॉर्म ऑफ चैरिट ऑफ द सन गॉड कि भगवान सूर्य का रथ है, ये इस तरीके से इसको बनाया गया है। इसके बनाए गए कि भगवान सूर्य जो है रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। 24 इसमें व्हील्स बनाए गए हैं, इसके रथ के पहिए बनाए गए हैं, हेविली डेकोरेटेड, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन कार्विंग की गई है, पत्थर के अंदर कार्विंग की गई है। द ह्यूज मोनोलिथिक व्हील्स रिप्रेजेंट टाइम, यूनिटी, जस्टिस, कॉम्प्लीटेंस एंड परफेक्शन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो जो इसके पहिए हैं वो क्या क्या दिखाते हैं, टाइम को दिखाते हैं, यूनिटी एकता को दिखाते हैं, जस्टिस, कॉम्प्लीटनेस एंड परफेक्शन एंड मूवमेंट को दर्शाते हैं। देन वी हैव अनदर थिंग इज Gateway of India. The majestic Gateway of India is a glorious historical monument built during the British rule to commemorate the visit of King George V and Queen Mary to Mumbai. तो ये गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया था, ब्रिटिश रूल के अंडर बनवाया गया था जब राजा जॉर्ज वी और क्वीन मैरी मुंबई आ रहे थे उनके लिए। इट इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देन वी हैव Golden Temple. The Golden Temple, also known as Darbar Sahib or Harminder Sahib, is the holiest Sikh Gurudwara located in the city of Amritsar, and this temple was designed by the 5th Guru, Guru Arjan Dev Ji. तो ये जो गोल्डन टेम्पल है, ये दरबार साहिब भी बोलते हैं इनको, हरमिंदर साहिब जी भी, गुरुद्वारा जी भी बोलते हैं, और ये इनके 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव जी ने बनवाया था और ये अमृतसर में है। Then we have Qutub Minar. The Qutub Minar was constructed in 1192 CE by Qutubuddin Aibak and was later complete by his successor Iltutmish. तो कुतुब मीनार उनके 1192 में बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और फिर उनके सक्सेसर जो थे, उनके बेटे जो थे इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया था। मेजरिंग 72.5 मीटर, इट इज़ द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्टोन टावर है, स्टोन पे बनाया हुआ टावर है ये। एंड कुतुब मीनार इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन एंड इट्स वॉल इज़ कवर्ड विद द वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान। तो इसकी जो दीवारें हैं उस पर कुरान के वो लिखे हुए हैं, ठीक है, कुरान के शब्द लिखे हुए हैं। द कुतुब कम्प्लेक्स हाउसेज एंड आयरन पिलर विच इज़ मेड ऑफ 98% रॉट आयरन। तो यहाँ पे एक आयरन पिलर भी है जो कि 98 किलो आयरन का बना हुआ है। Then we have summary. India is situated in the south of Asia and the world largest continent. It is the 7th largest country by area and the most populous country in the world. India has varied political and physical features. India is a democracy governed by constitution.
Unity in diversity makes our country an incredible place to live. Indian farmers are the backbone of Indian society. Almost 70% of our country population depends on farmers for their livelihood. The different types of farming in India are commercial farming, subsistence farming, mixed farming, shifting agriculture and organic farming. Each region in India represent a different cuisines due to their geographical location and different climatic condition. The great heritage of India reflects its rich culture and glorious past. It connects us to certain social values, beliefs, religion and customs. Concept compass. Tick the correct option. In which continent is India located? It's Africa, South America, Asia or Europe? It's Asia. The capital of India is Mumbai, Kolkata, New Delhi, Jaipur. तो कैपिटल है इंडिया की न्यू दिल्ली. द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल. तो ये हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? इट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश. इट्स राजस्थान. इंडिया शेयर्स इज बॉर्डर विद इन द नॉर्थ वेस्ट विद नेपाल, बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान. तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं. फिर इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हिंट बॉक्स. तो हमें हिंट बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है. India is the dash largest country in the world in terms of area. So India is the 7th largest country. India has dash and dash state, 28 and 8 union territories, and the dash mountains are located in the North Himalayan mountains. Dash is the smallest state of India, Goa. The dash oceans lies in the south of India. It's Arabian Ocean, Indian Ocean. Write T for true and F for false statement. India is a peninsula because it is surrounded by the water on 3 sides. Yes, this is true. The Parliament of India has 3 houses. No, it has 2 houses only. This is wrong. Goa is the largest state in India. No. Then India adopted its constitution on 26 January 1950. Yes, of course. The Taj Mahal is located in Rajasthan. No. Then we have matching here. Match the words in column A with their meanings in column B. Column A to column B. Taj Mahal. Taj Mahal in Uttar Pradesh. Golden Temple in Punjab. Qutub Minar in Delhi. Hawa Mahal in Rajasthan and Sun Temple in Odisha. Answer the following question. Name the countries that India shares border with. Why is India called a peninsula? Why is the important of the Indian Constitution? Why is our country divided into states and union territories? Briefly explain the idea of unity in diversity in India. So you will do these question and answers by your own in homework. Look at the pictures and answer the following question that follow. Why are farmers called backbone of Indian society? What does this picture tell us about the role of teamwork in the farming? तो आपको ये क्वेश्चन आंसर स्वयं से होमवर्क में करने हैं. Read the following text and answer the question that follow. Ravi is reading about India. He learned that India has 28 state and 8 union territory. A constitution adopted in 1950 and many neighboring countries. He is curious about how such a large and diverse nation is governed and kept united. So how many states and union territories are there in India? So you can answer this from this passage that 28 states and 8 union territories. When was the Indian Constitution adopted? What is Ravi curious about? Who is known as the father of Indian Constitution? And why is unity in diversity considered India's strength? So you will answer these questions from the paragraph itself. Read the following and write the correct one-word description. A person who can vote in election, that is voter. The highest law-making body of a country, that is legislature. The supreme law of the land is, that is constitution. And a government chosen by the people, that is democracy. A large piece of land surrounded by the water on 3 sides, peninsula.
A narrow strip of land connecting two larger land mass, that is called the isthmus, a large natural stream of water flowing into sea, lake or another river, that is called river. The imaginary line that divides the earth into northern and southern hemisphere, that is called the equator. तो इसको हम equator बोलते हैं. Speak smart. Imagine you are meeting a friend from another country. Tell him or her about India, location, its neighbors and its culture in 3 to 4 sentences. Try to speak confidently. Life skill and ethics. India has many religions, language and tradition, yet people live together in peace and harmony. What value do you learn from this unity? How can you practice them in classroom and society? तो आप कैसे अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को करेंगे प्रमोट. Then we have wonder workshop. On a political map of India, draw and color the neighboring countries. Mark their names clearly on the same map. Draw symbol of unity in diversity. Example: diya lamp for Diwali, crescent moon for Eid, and cross for Christmas, lotus for Buddhism. So you have to draw this in this area. I hope children you really enjoy the chapter. Now do practice.